Yeah, hi. Hi, good afternoon, everyone. Hello? Yeah, can you hear me, Mr. Hello? Joshi? Yes, Mr. Yash, Yeah, right? I can Hi. hear you. Right, Mr. Yash, good afternoon. Yeah. I'm audible to you? Yeah, you are very much audible. So Thank you so much. I will just request Mr. Govardhan to give me the control. Right. Actually, I joined it very earlier, but my there was issue in the connectivity, so no one was able to hear me. Now I am Yeah, just looks like the same, in fact. so I am sharing my screen. Just let me Ah, know once it is visible to you. sure. Yeah, is that visible to you? No, nothing is visible except the name. Means you can't see the PowerPoint slide. No. It was visible earlier, now it's gone. Okay, 1 minute. To do the entire screen. And then yeah, now let me know if it is visible to you. No, not yet. It's telling I'm already started. Sharing is already started. It was appearing earlier, but it's suddenly it just went off like. Okay, Yeah, now it's there. Now it's it's there. there. Yep. Great, fine. So hope it will remain there. And Yeah, now let's. yeah. So basically, the topic which was basically told to you related to the solar financing, and Yes. it is much more about the things where no, the solar projects where we can get the finance, easy finance. Right. So to getting the easy finance, it is a process. It is a tedious process, and that's the process which I am going to discuss it. And what can be the challenges during the time of financing, and Mm-hmm. later on when the financing is achieved and then paying back, Mm-hmm. what will be the things has to be done during the asset management, all those things. So those all things I am basically going to discuss it with you. Sure. Later on, I am open for the discussion. I am open for your questions, and for the specific case, you can connect me later on also. Certainly. So this is the agenda. So I am representing company called Ravindra Energy. So I will give you the brief introduction about that, and then we will move on to our agenda about the financing thing. So we will. Mr. Yes, just 1 minute. Do I need to take it down, or you'll be sharing this a copy of this to me? Yeah. This presentation copy will be shared with you. Right. Fair enough. Yeah. Okay. You can write down your questions, means, or you can ask in between also, and it's up to you. Right. Okay. So I'm representing company called Ravindra Energy. I will give you the brief about that, and then later on I will give you the full brief about the solar financing, how we used to do that revenue model, project financial analysis, how we do the DPR, and then approaching the lending institutions, and further, and my last and important topic is basically the futuristic business model, where the things we can build the amazing solar portfolio in near future. So I'm presenting the company called Ravindra Energy Limited. It is a quite old company founded in year 1980. It is promoted by Mr. Narendra Murkombe. He was the founder of Shri Renuka Sugar Group. That is a Belgaum-based, quite large sugar factory, and it is counted at top three in India for the sugar belt.
We have diversified experience in energy-related project and services. We have done almost 10,000 plus projects successfully installed all over India. That sums up around 70 megawatt plus installations, and we are the top achiever among the MNRE certified channel partner. Business segment is one of our business segment is solar pump. So solar pump is it's mostly the tender type business model where we are getting. It means we are first of all we are impaneling with the discom and then getting on the tenders and number of the pumps. We are assigned in particular state, particular area, and based on that we used to do the solar pump installation. So major challenge is basically here the logistic transportation and the procurement. So all those things we are managing internally, and till now we have almost more than 15,000 of the pumps we have already installed. We are certified off-grid channel partner for MNRE and empanelment for the solar pump. These all are things are basically help us to have the benefit of the subsidies and to have the benefit of the confidence basically of the people, so that they can basically choose us. There are a lot of players in the market. They can choose not only the Ravindra, they can choose even the Mahindra System is also there. But the point here is that means not all the people are the empaneled vendors. So this empanelment gives us the ease basically, and people also to ease to basically preference to us. Then we have the ground mounted project. So we have around let's say that is traditional ground mounted project where plant can be installed on the ground and power can be sold to the government or can be third party. So we have around 35 megawatt of the portfolio. Then we have the rooftop segment. There we have done around 6 megawatt of the product, and it is again in the rooftop channel partner. We are the MNRE's channel partner. The business model which we are in basically will help you also to understand the business model while going forward. So the traditional business model is basically the capex, and so the investment will be done by the customer. 100% investment will be done by the customer, whether his equity or he can raise the debt from the financial institutions. And operation and maintenance also will be in the customer scope, most so over till the tenure of the is till the project life 25 years. So customer will get the benefit of the electricity bill saving. 100% of the electricity bill saving is same. So the business model is simple. For the customer, it is basically he's saving 7 rupees, 10 rupees per unit, whatever be the electricity generated by the solar plant. And when the customer is doing the capex project, then he's saving basically on the accelerated depreciation also. So this accelerated depreciation is the first year it is 40%, and then second year again 40%. Whatever be the balance out, that will be go in the third year. So accelerated depreciation is the term where the customer can depreciate their asset fastly. So the general depreciation with the solar project is considered as the 4%, but the government of India has given the benefit to have it AD. Basically, we call it AD benefit. So asset can be depreciated earlier, and the tax can be basically saved over that. And another more benefit is basically the renewable energy attribute that can be traded in the international market. So that's some term called IREC. So let's say if someone is having a 1 megawatt of the solar plant and he want to trade basically those attribute, it means to say that I have 1 megawatt of solar plant, and this solar power plant is basically offsetting how much CO2 that is equivalent to how much planting the tree. So whatever be the environmental impact my solar plant is having, so that impact can be traded in the international market. Our international authorities give the value to the solar power plant, give the value to the green energy, give the value which we are creating in the community. And based on that value, the monetary support will be provided.
So there is one agency that is called IREC that used to do this all the trading activities. Monetary wise, there is the small contribution, and you will get basically very means it's a minimal monetary support. It is not as high for in terms of the monetary. I would say it is for today's date. It is 1 megawatt will be around 17 to 25,000 rupees per year. It's not a great, but it gives you the international exposure. Your project is in the international market. Your project attributes is basically traded in the international market, and the project life is 25 years. The older the project, the value is more, because that gives the confidence. From the last 5 years, last 10 years, my project is running on. The people can bet on your project very much. So the more the bet, you will get the more money. So maybe 5 years down the line, 10 years down the line, that amount can be goes into the thousands or hundred of the thousands. So that is the simple model, which is basically the capex, where the client is investing 100% on the project. This is we are doing. We are also doing. Ravindra Energy is also doing as a traditional capex project. I am involving all those things basically apart from the finance PPT, which will come on the later part, so that you can understand the basic business models. The futuristic business models, other business model, I will come on the later part. The next business model is OPEX, RESCO. We generally call it RESCO, Renewable Energy Supplying Companies. We heard the plant is owned by the third party. So this RESCO is basically the third party. They are owning the plant. They have a legal ownership of the plant, and they will be responsible for the O&M. It is simple, like in the terms I would say, uh, someone is basically rented out his space and telling him, boss, this is my space, you put your solar power plant, I will use that energy. So this is again the commercial negotiation, commercial agreement between the seller and the buyer, seller of the renewable energy and buyer of the renewable energy. So the RESCO person will come in the picture. He will invest all those project, hold all those money in the project, and that money, whatever with electricity will be generated, that generated power will be passed to the electricity consumer, and he will pay for that. Whatever with excess energy, that will go to the grid, and if it is the net metering, the government will pay you. Otherwise, it is just a waste. So the size of the project should be like that, where the only and only the required electricity to be generated. So most of the OPEX project, that is the number one point, that only and only the required energy. So let's say if there is the net metering benefit is there, and that net metering benefit is either a month or a year. So let's say if it is only a month, then we should design in such a way that there is the minimal or no export during the end of the month. Or it is the year, then there should be no export during end of the year. And for the states like Gujarat, if it is the day wise, then the project should be designed in such a way that day wise settlement should be there. So again, state to state, areas to areas, basically policy to policy, all those things will be changed. So it's better to have the proper technical as well as the policy. The person who is having the information about both the aspects should design it. Then it is just our install project we have done under Farmers Scheme Single Access Tracker. This is the one college in Bagalkot, Bashwishpa Engineering College, quite a popular college in their area. We have done around 255 kilowatt capacity there. This is Malnad College of Engineering, Hassan. So these are our key clientele. Now, I will start financing things. So please bear with me, and if the things are going a little bit fast or it is going off the side, please let me know in between, so that I can come back to the topic and clarify your doubt. So very first thing is basically the solar project, brief of solar project, and whatever be the different type of solar project. Mr. Joshi, you can hear my cursor, right? You can hear my cursor mouse also. Uh, Mr. Joshi, can you see my cursor?
If you are on mute, then you can unmute and then say. Hello? Can you hear me, Mr. Joshi? You are on mute, Mr. Joshi. And there is the chat also. And you are telling you can't unmute. Okay, Mr. Gordon ji is telling we can hear you. So, Mr. Gordon ji, just tell me that you can see the cursor also. Just confirm that. I believe it is visible anyway. Okay, fine. Yeah, I can't hear anyone. Cursor visible. Thank you, Mr. Joshi. So my point here by putting this slide, basically my major point to brief you is about there are the multiple type of solar project and people generally got in confused कि ये कौन सा project है, ये कैसा project है, ये मतलब मैं कैप्टिव की बात कर रहा हूँ तो थर्ड पार्टी की बात कर रहा है, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ, आप ग्राउंड माउंटेड की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे है ना टर्म्स आते हैं जब बहुत सारे प्लेयर्स एक ही जगह हो जाते हैं और कुछ नए लोग होते हैं, कुछ पुराने लोग होते हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। तो मेजर मेजर आप ये मान के चलिए कि दो प्रोजेक्ट हैं, रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड। ग्राउंड माउंटेड में आप फ्लोटिंग भी डाल दीजिए, तो कहीं-कहीं क्या हो सकता है कि मेरा जो दूसरा कैटेगरी आती है प्रोजेक्ट के डिफरेंशिएशन की, वो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड की, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल की या फिर यूटिलिटी स्केल की। डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल क्या होता है? जो स्मॉल और मीडियम कैपेसिटी है। स्मॉल मतलब हमारे 10 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, मीडियम जो हमारे 5 मेगावाट आज की डेट में जो कुसुम की स्कीम चल रही है, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट 5 से 4 मेगावाट या 5 4 से 500 किलोवाट से 4 मेगावाट या फिर 10 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल सोलर पावर प्लांट पे आते हैं। यूटिलिटी स्केल के जो सोलर प्लांट आते हैं वो वाले प्लांट होते हैं जिनका स्केल 10 मेगावाट 15 मेगावाट जैसा होता है एंड दोज प्लांट्स आर बेसिकली डिजाइंड टू सेल द पावर टू द गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनी आई वुड रादर देन से। सो द यूटिलिटी कंपनी लाइक डिस्कॉम्स को जो लोग पावर बेच रहे हैं, जो लोग स्टेट ग्रिड, नेशनल ग्रिड के थ्रू पावर को सेल आउट कर रहे हैं, व्हील कर रहे हैं। तो हमारा ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट यूटिलिटी स्केल का है, बट कहीं-कहीं दिक्कत आ जाती है, कहीं-कहीं लार्ज रूफ है, तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है कि नहीं आप उसे डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं कर सकते हो। कहीं-कहीं रूफटॉप भी मैंने यूटिलिटी स्केल पर देखे हैं। उसके बाद एक कैटेगरी आती है कैप्टिव या ग्रुप कैप्टिव की और एक थर्ड पार्टी सोलर प्लांट की। थर्ड पार्टी इज वेरी मच क्लियर कि जहां पर ओनरशिप थर्ड पार्टी की है, ओनरशिप इज नॉट ऑफ द कंज्यूमर basically, and the captive and the group captive is basically captive, it means captive projects are those projects, those are designed, those are basically built it only and only to consume for themselves, whether it may can be in हाउस, इट कैन बी ऑफ साइट ऑल्सो। तो अगर मैं कैप्टिव की बात करता हूँ तो ये रूफटॉप तो मेरा कैप्टिव ही रहता है क्योंकि हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए होता है। अगर वो नेट बिलिंग पर है तो मेरा रूफटॉप कैप्टिव नहीं होगा। तो मेरा अगर वो नेट बिलिंग पर है तो मेरा रूफटॉप माना जाएगा कि मैंने यूटिलिटी स्केल वाला आप बोल सकते हो उसे, या डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्लांट बोल सकते हो उसे, तो अगर वो नेट बिलिंग का है जो महाराष्ट्र में आज की डेट में स्कीम चल रही है। और एक है ग्रुप कैप्टिव। ग्रुप कैप्टिव में क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल ओनरशिप होती है। So let's say one means there are the couple of people are basically comes up or they have put up the ownership। तो उसमें इस तरह से होता है किसी ने थोड़ा इन्वेस्ट किया है, किसी ने थोड़ा इन्वेस्ट किया है। सो इट्स बेसिकली द ग्रुप कैप्टिव। अगेन ऑन स्टेट दिस डेफिनेशन इज डिफरेंट। सो अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो वहां पर 26% of the equity should be from the consumer।
तो मतलब लगभग 8 से 10% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कस्टमर का होना चाहिए और 50% ऑफ द एनर्जी जनरेशन शुड बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. So that is the again the terms in the Karnataka. So it again depend on the state for which we are talking about, and for which what type of solution we can offer it. एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा क्लियर लिखे होंगे पॉलिसी में, कि ये वाला मेरा प्रोजेक्ट कैप्टिव है, ये वाला प्रोजेक्ट मेरा थर्ड पार्टी है, ये वाला प्रोजेक्ट मेरा यूटिलिटी स्किल है, जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप अपने डीपीआर में देंगे उतने ही आपको क्लैरिटी मतलब आसानी से लोन मिलेगा, जहाँ पर फाइनेंसिंग मिलेगी, जहाँ पर भी आप अपनी फाइल्स वगैरह लगा रहे हैं. Then basically this is the revenue model. I am talking now about revenue model. Solar plant तो हमने लगा लिया. I mean to say solar plant की हमने बात कर ली क्या क्या है, but हमारा revenue model क्या है solar plant का. So very first question that will come in everyone's mind or even the lender's mind is basically who is the off taker of generated solar energy. आप प्लांट लगा रहे हो, उसका ऑफ टेकर क्या है. बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मेरे पास लैंड है, मैं वहां पे सोलर प्लांट लगाना चाहता हूँ, आप आओ और इन्वेस्ट कर दो. बट उनसे मेरा सेकंड क्वेश्चन यही रहता है कि बॉस उस एनर्जी को यूज कौन करेगा. हु विल यूज दैट एनर्जी. गवर्नमेंट यूज करेगी, आप किसी पास वाली फैक्ट्री में दे रहे हैं, आप उसको कितने में सेल आउट कर रहे हैं. तो वो सारा का सारा जो होता है वो आपको पहले का पहले ही पता होना चाहिए, बिकॉज रेवेन्यू वहीं से ही आएगा. इफ यू आर यूजिंग सेल्फ कंजम्पशन, तो मैंने यहीं पर ही है ना दो मेथड्स बनाए हैं. इफ इट इज यूजिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन देन इट इज वेरी मच क्लियर कि जो उसका 100% सेविंग है ऑन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. तो जो आपका रेवेन्यू मॉडल रहेगा, अगर आपका सेल्फ कंजम्पशन है तो आपका जो है सेविंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. लेट्स से अगर ये 8 रुपए आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते हैं, फुल सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को आप अपने रेवेन्यू मॉडल में कंसीडर कर सकते हैं, और इफ यू विश आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं. करेंगे तो आपकी आईआरआर, आपका डीएससीआर, जो भी आपके रेशियोज होते हैं वो अच्छे दिखेंगे. वो आपके रेशियोज अच्छे दिखेंगे. बट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट गवर्नमेंट ने अभी दे रखा है, कब तक रहेगा पता नहीं है, बट अभी दे रखा है. तो मैं कहूंगा कि आप इसको ऐड करिए अपने रेवेन्यू मॉडल में. तो लेट से 8 रुपए का आपका एनर्जी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपके 2 रुपए की है, 10 रुपए लग जाते हैं. उसके बाद व्हाट विल बी योर O&M कॉस्ट. So accordingly the O&M cost you have to built in for a megawatt kind of project. For let's say अगर मैं 1 मेगावाट की बात करूँ तो 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे O&M आज की डेट में 2 लाख 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास का है पर ईयर, जिसमें आपके क्लीनिंग, वेजिटेशन, ये जितना भी आपका होता है, ग्रास कटिंग एंड ऑल, साल में 3 से 4 बार, और नॉर्मल नॉर्मल ना मॉनिटरिंग सपोर्ट, ऑल दोस थिंग्स, मतलब 1.5 से 3 लाख के आसपास आ जाता है. और उसका इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट, जो आपके इंश्योरेंस की प्रॉपर्ली कॉस्ट जाएगी हर साल, वो कितना है. रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, अगर वो प्रीमाइसेस रेंट पर है तो आप उसे का रेंट कर सकते हैं. एनी अदर ओवरहेड चार्जेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट डिस्कॉम माइट गिव यू सम चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस. जैसे अभी गुजरात में बैंकिंग चार्जेस लगा दिया है गवर्नमेंट ने 1.5 रुपीज का. तो अगर वो ऐसा कोई चार्जेस है तो वो बैंकिंग चार्जेस अगर कुछ हैं तो वो एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट है, तो व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑन द बेसिकली इफेक्ट ऑन द ईयरली बेसिस. तो इन सब के बाद आपका जो आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा. तो ये प्रॉफिट ही आपका आगे चलकर आपके कैलकुलेशंस में दिखेगा, जिसकी वजह से आपका मतलब जो भी आपका ये प्रॉफिट है दैट विल बेसिकली विल वर्क ऑन द डीएससीआर. आपका डेट सर्विस रेशियो जो है वो आपका कैसे है, क्योंकि आपने डेट उठाया बैंक से, तो आपका जो ये मतलब बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, यही आपका बेसिकली है. इट्स बेसिकली नॉट एग्जैक्टली द प्रॉफिट, बट इट विल द कैश, इट विल बी द रेवेन्यू दैट विल सर्व यू to cover your debt services. So that is the one self consumption purpose. और अगर आपने सोलर प्लांट लगाया है, सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, और ये थर्ड पार्टी सेल या गवर्नमेंट सेल है, तो उसमें आपका जो रेवेन्यू है वो बाई सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी ही आएगा, और वो पर यूनिट सेल कितनी है.
तो जब आप गवर्नमेंट सेल कर रहे हैं, जब आप अपना या थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का सेल है तो दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन बेसिकली कि आपके वो क्रेडिट रेटिंग पर, उसके बैलेंस शीट पर आपको लोन मिल जाएगा एंड इट विल बी द क्लाइंट्स responsibility to pay you and all those things, and it is anyway the tight PPA. बट अगर ये गवर्नमेंट का है तो आज की डेट में ये है कि अगर आज की डेट में अगर आपका गवर्नमेंट का पीपीए 4 रुपए से भी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से जो बैंक हैं, मतलब आज की डेट में मैं अगर बात करूँ तो द बैंक्स आर नॉट कंफर्टेबल while serving those kind of loan files, क्योंकि they know that कि government will come up. Let's say if I give you the example of the state आंध्रा, जहाँ पर गवर्नमेंट ने हाई टैरिफ जो मिल गए थे उनको वापस रीनेगोशिएट करने के लिए प्लांट को रोक दिया था, बिल उनके रोक दिए गए थे। तो दैट इज द केस वेयर द थिंग्स कैन अराइज। तो अगर अननेसेसरी हाई टैरिफ है तो अगेन इट विल बी द प्रॉब्लम। एक रीजनेबल टैरिफ है, कॉम्पिटिटिव टैरिफ है, यू विल गेट वेरी इजी फंडिंग्स। और आज मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सब जान गए हैं, मतलब इट इज नॉट अ न्यू थिंग्स कि है ना प्लांट की कॉस्ट कितनी है। हर किसी को पता है कि प्लांट की कॉस्ट मतलब 3 से 4 करोड़ के बीच में आनी है, और इससे ज्यादा कोई अचानक से कोई 5 करोड़ की प्लांट की कॉस्ट लाके दे देता है तो इट विल बी अगेन द क्वेश्चन कि बॉस इतनी ज्यादा प्लांट कॉस्ट कैसे है। द सेम केस अगर कोई अननेसेसरी वाला टैरिफ भी आ जाता है 6 रुपए 7 रुपए का भी, तो भी इट विल क्रिएट द क्वेश्चन कि बॉस इतना ज्यादा टैरिफ आपको कैसे मिल गया। So all those things will affect it. So I would suggest you to go on the realistic way. केवल और केवल टैरिफ नहीं होता, केवल और केवल आपका IRR भी नहीं होता जिस पर आपको फाइनेंस मिले। यहाँ पर आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपके पॉइंट आउट करती हैं कि आपको इजी फाइनेंस मिल जाए। तो उसके लिए मैं आगे अपने पीपीटी में आता हूँ, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सेल कर रहे हैं तो आपको अपना रेवेन्यू जो है वो एक रियलिस्टिक रेवेन्यू आपको बताना होगा, कितना मेरा पीपीए साइंड है, साइंड है एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोजेक्शन, क्या-क्या उसका सेफगार्ड है पीपीए का। O&M cost, nominal, insurance nominal, rent of the premises again nominal, accelerated depreciation again if it any. So those are the revenue model which you have to build and then showcase to the financial institution, बॉस मेरा revenue model ये है, यहाँ से मेरा पैसा आएगा जो डेब्ट को सर्व करेगा। So is there any further doubt on this particular revenue model things? Mr. Joshi is asking what is ideal DSR? तो आइडियल DSR सर मतलब 1.2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की क्रेडिट रेटिंग कम है, सॉरी क्लाइंट की क्रेडिट रेटिंग हाई है, तो 1.2 से कम या 1 से भी कम वो चल जाएगी, क्योंकि उसमें क्लियरली डिपिक्ट होगा कि आपका टैरिफ लो है, इसी की वजह से आपका DSCR कम है। आप जो क्रेडिट रेटिंग बोल रहे हैं, टिपिकली व्हाट इज द क्रेडिट रेटिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज गुड? तो वेरी मतलब 1 के नीचे चलेगा मतलब क्या? ट्रिपल बी? नो, ट्रिपल बी प्लस? नहीं, A1 प्लस। अगर क्रेडिट रेटिंग हाईली मतलब हाई है, आई मीन टू से वेरी गुड है, सो दैट विल बी A1 अगर क्रेडिट रेटिंग है तो आपका लो DSCR चल जाएगा, 1.2 से कम होगा चल जाएगा। अच्छा, आइडियली आपका 1.2 के इक्विवेलेंट उससे ज्यादा होना चाहिए आइडियली। ओके, राइट, लेट्स गो अहेड, नो प्रॉब्लम। या तो अपन को DSCR पे ही काम करना है वैसे तो, क्योंकि आप IRR तो आप मतलब है ना 12% दिखाओ या 25% दिखाओ, वो बैंक समझ जाता है कि वो क्या रिस्क है 12% में और 25% में। सही बात। तो मेन ये है कि आपका है ना जो डेट को आप सर्व कैसे करेंगे, उसकी एश्योरिटी क्या है, दैट इज द मेन। ट्रू, राइट। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसमें आपके मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट, जनरेशन, डिग्रेडेशन, रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, interest cost, accelerated depreciation benefit, payback period, IRR calculation, these all things should be considered in your financial analysis.
एंड देन 25 इयर्स कैश फ्लो आपको दिखाना होगा, सिनेरियो आपको मल्टीपल COF पर, इट अगेन डिपेंड ऑन द, मतलब इट विल अगेन डिपेंड ऑन द लोकेशन कि आपके 17% पे COF ले रहे हैं या 18 पे या फिर 15 पे। तो एक मल्टीपल एक सिनेरियो एनालिसिस आप दिखा दीजिए कि अगर मेरा 15% COF है, 17 है, 19 है, तो मेरा मेरा क्या क्या मेरा है ना IRR का इफेक्ट रहेगा, DSCR का क्या इफेक्ट रहेगा अकॉर्डिंगली। ओके। एंड देन योर IRR एनालिसिस बेसिकली विद मल्टीपल डेट और इक्विटी। अब जैसे आपने अगर 30% आप इक्विटी लगा रहे हैं और 70% आप डेट ले रहे हैं, द you can seek basically 50% also, or you can seek the 90% also. So what will be your IRR, basically the project IRR on that basis? So project IRR, even if you bring on the 8%, 10%, it is well and good. तो IRR एक्चुअली इम्प्रेसिव होती है, नंबर्स इम्प्रेसिव होते हैं दिखाने के लिए, बट जब फाइनेंस की बात आती है, जब एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात आती है, तो वहाँ पर पीपल विल जनरली से कि IRR तो ठीक है, हमारा रिटर्न तो अच्छा आ जाएगा, बट व्हाट विल बी द रिस्क फैक्टर ऑन दैट। राइट। तो ये सब करने के लिए आपको एक DPR बनानी पड़ती है। सो दैट DPR, फ्यू सैंपल्स आई विल शेयर इट विद यू। तो वो DPR आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देना होता है। सो यू कैन प्रिपेयर द DPR योरसेल्फ, और यू कैन हायर थर्ड पार्टी also to basically have that DPR. So they are basically that the third party are basically the consultant, and they are full-fledged now. They have already taken finance. They have already financed few projects. So मतलब उनको थोड़ा सा experience होता है कैसे क्या चीजें tweak करनी है. तो they can help you. But मैं आपको जो points बता रहा हूँ, इन सारे points को ध्यान में रख के आप खुद भी बनाएंगे तो भी आपके मतलब 99% chances हैं कि आपको success मिलेगी अपनी financing में। Sure. तो जो पॉइंट्स टू कवर इन DPR, वेरी फर्स्ट विल बी द एग्जीक्यूटिव समरी। आपके प्रोजेक्ट का क्या क्या है, आपका प्रोजेक्ट, आपके कंपनी की, आपकी पर्सनल प्रोफाइल क्या है, और इसके बाद के जो जो 2 पॉइंट है, सोलर पॉलिसी फ्रेमवर्क और सोलर पॉलिसी एडवांसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पॉलिसी क्लियर है वहां पर आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। पॉलिसी क्लियर नहीं है, लेट्स से कर्नाटका की मैं बात करता हूँ, कर्नाटका में बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और आप अगर उस पर है ना लोन मांगेंगे तो आपका टाइम लगेगा। मना तो कहीं पे भी नहीं होता है, आज की डेट में मना तो कोई भी नहीं करता है, वो बस फाइल को है ना टाइम लगाते हैं। तो जहाँ पर पॉलिसी वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में BTM कॉन्सेप्ट इज वेरी मच प्रूवन। तो वहाँ पर आपके लोन प्रोसेस होने के चांसेस, फाइनेंसिंग होने के चांसेस वेरी वेरी क्लियर, वेरी गुड है। तो वो एक चीज होनी चाहिए, सोलर पॉलिसी का फ्रेमवर्क और एडवांसमेंट कैसे कैसे हुआ है। लेट्स से कि अगर मैं वापस दोबारा कर्नाटका की बात करूंगा, तो आज से 1 साल 2 साल में एडवांसमेंट कुछ हो नहीं रहा है, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं काफी रुके हुए पड़े हैं। तो दैट विल बेसिकली हर्ट द फाइनेंसिंग इम्पैक्ट, कि लोगों के सेंटीमेंट पर, कि यार ये फिर मार्केट जो है डाउन चला जाएगा, तो पैसे उसके मतलब द रिटर्न विल नॉट बी सेम एज लाइक व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड रिटर्न। तो अभी मैं जैसे किसी और स्टेट्स की बात करता हूँ जहाँ पर पहले नेट मीटरिंग नहीं थी। इफ आई वुड से गुजरात की मैं बात करूँ, तो जहाँ पर पहले थर्ड पार्टी मॉडल अलाउड नहीं था, और अब थर्ड पार्टी मॉडल अलाउ कर दिया गया है। सो इट इज बेसिकली द एडवांस्ड, considered as the advanced in terms of the policy enhancement. तो government is supportive, the people are supportive, and the business acumen is basically the encouraging the people to invest it in this. So most of the investment you can see that it is coming on the solar. Recently गुजरात में 250 मेगावाट का PPA साइन हुए हैं स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी में। दैट इज वेरी गुड फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट। इतने PPA साइन हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ अगर हाफ ऑफ द PPA इज ऑल्सो कमीशन, दैट इज वेरी वेरी, 1 साल में 1.5 गीगावाट कोई एक सिंगल स्टेट कर ले, तो इट इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। देन योर फिजिबिलिटी, आपके टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की कैसी है। अगर आप ने देखा कि यार वहाँ पर है ना जो रूफ है वही रूफ ही मेरी एस्बेस्टस की है, तो और वो काफी पुरानी एस्बेस्टस शीट है, तो वो मतलब एक तरीके का टेक्निकल फिजिबल नहीं माना जाता उस चीज को, कि इट इज नॉट क्वाइट अ गुड आइडिया टू पुट योर हैवी पैनल्स। 25 kg का एक पैनल होता है, तो वहाँ पर मतलब
पैनल इतना लगाया जाए और जिसकी रूफ ही स्टेबल नहीं है, कल को उसने रूफ को भी तोड़ दिया तो फिर उसका एक अलग से इन्वेस्टमेंट होगा। सो और आपका मतलब एरिया भी, अब जैसे अगर अभी मैं बात करूँ तो गुजरात में ही अमरेली में प्रोजेक्ट्स लगे थे। अभी तकूते आया और उसने मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स का नुकसान किया है। और उसके पुराने भी जैसे गुजरात में चारंखा में जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वहाँ पे भी मतलब बाढ़ का पानी आता है। तो वो सब चीज़ें, एरिया कैसा है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, लॉन्ग टर्म 25 साल वगैरह के लिए कैसा चलेगा, जितनी ज़्यादा आप रिपोर्ट अपनी डीपीआर में डालेंगे, रिपोर्ट इन द सेंस टेक्निकल की, किसी अगर आपने टेक्निकल कंसल्टेंट से फीजिबिलिटी कराई है, दैट इज द वन रिपोर्ट। अगर आपने वहाँ पे सॉइल टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं, दैट इज द रिपोर्ट। आपने वहाँ का मतलब मतलब आपने कॉन्ट्यूर सर्वे करा रखा है, तो वो सब चीजें आपने जितनी ज्यादा आपने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी डीपीआर, दैट विल बेसिकली हैव द मोर चांसेस। और उसके बाद कॉमर्शियल फिजिबिलिटी, सो कॉमर्शियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट इन द सेंस द कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो कंज्यूमर है उसका भी, उसको ये प्रोजेक्ट कैसे बेनिफिट कर रहा है, ये भी पॉइंट आपको है ना डीपीआर में कवर करना है। लेट से अगर आपने देखा कि आपका जो प्लांट है आपने आपने टैरिफ लगा दिया 7 रुपए का, और अगर वो 7.5 रुपए का गवर्नमेंट से ले रहा है, तो 50 पैसे सेविंग फॉर हिम is not a good idea for him to invest it for just a 50 पैसे सेविंग्स। तो एक कॉमर्शियल इम्पैक्ट दिखना चाहिए, एक अच्छा इम्पैक्ट दिखना चाहिए कि क्लाइंट साइड से कि है ना दिस इज द फिजिबल कॉमर्शियल गुड ऑप्शन फॉर द क्लाइंट ऑल्सो। ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपके बेसिक 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने है ना डीपीआर में स्टार्टिंग में रखने हैं, और उसके बाद आपको अपना टेक्निकल प्लस कॉमर्शियल प्रपोजल डालना होगा। टेक्निकल प्रपोजल में आपको अपने कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन या एनेक्सर में भी डाल सकते हैं, और कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स आप अपने डीपीआर में डाल सकते हैं, बाकी की चीज़ें आप एनेक्सर में डाल सकते हैं। तो जैसे आपके कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, मॉड्यूल कौन से हैं, इन्वर्टर कौन से हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी क्या है, और अगर आपने पुराने कोई आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप इसमें डालिए। इंटरकनेक्शन डिस्क्रिप्शन, आप कैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, एलटी साइट, एचटी साइट, या फिर आप कोई आरओडब्ल्यू के इश्यूज हैं, तो सारी की सारी चीज़ें। एंड देन वारंटी एंड गारंटी डिस्क्रिप्शन ऑन द सोलर कंपोनेंट, कि आपका मॉड्यूल का, इन्वर्टर का क्या कैसे गारंटी है, एंड व्हाट विल बी द रिस्क मिटिगेशन फैक्टर। अब जैसे आप पॉली यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, आप वहाँ पर अपना सारा का सारा रिस्क जो है कम है। लेकिन अगर कोई दूसरे आपके मॉड्यूल्स आ गए, आज के डेट में एक नया मॉड्यूल आया है परवर्स का, ऐसे कुछ नाम है उसका, पी से स्टार्ट है, नॉट क्लियर, जो मतलब जो मतलब सोलर एनर्जी को स्टोर करता है, इट इज जस्ट काइंड ऑफ फोम that will store it in the like a foam, it will store it and then it will basically imitate the energy। तो अगर वो एकदम नई टेक्नोलॉजी है, उसका उसका बहुत ही कम यूज हुआ है, तो उसमें काफी ज्यादा रिस्क है। आपने लगा लिया और 1 साल बाद जनरेशन नहीं हुई, 2 साल बाद जनरेशन नहीं हुई, देन हु विल बियर दैट रिस्क? So that all those things will have to be covered in the technological proposal। देन योर कमर्शियल प्रपोजल, सो कमर्शियल प्रपोजल में आपका मोटा मोटा कॉस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, और आपके ओवर एंड हेड एक्सपेंसेस कितने हैं, और इन सब के रिस्क मिटिगेशन फैक्टर जैसे वारंटी, गारंटी सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, कुछ भी है, तो उसके सारे के सारे आपके रिस्क मिटिगेशन फैक्टर क्या है। Then there is the further 25 years power price projection, मतलब जो आपका क्लाइंट का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है। सो अगर आप लेट से आप बोलते हैं कि 0.5% या 3% से 0.5 या 3% से आपका एस्केलेट होता है, तो उसमें आपका क्या क्या बेनिफिट है, ऑल दोज। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक अ पॉज। सो 25 इयर्स पावर प्राइस प्रोजेक्शन कैसा है?
3% के साइड से अगर आप एस्केलेट करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके कैश फ्लो में ना दिखाई देता है कि आपका पावर प्रोजेक्शन आपका 3% से बढ़ता जाता है, तो क्लाइंट की सेविंग्स जो है वो ईयर ऑन ईयर और बढ़ती जाती है। उससे आपका आईआरआर एंड पेबैक विल बिकम बेसिकली मच मोर बेटर। आपका आपका सिनेरियो एनालिसिस, अगेन दैट सिनेरियो एनालिसिस हैज टू बी कवर इन द डीपीआर एंड इक्विटी डेट एनालिसिस, आपने कितना इक्विटी डेट लगाने का आपने प्रपोजल दिया है, देन सेम डीएससीआर एनालिसिस and then revenue profit analysis, bare minimum condition, it is basically the part of scenario analysis only. Moderate condition, AD benefit, subsidy benefit अगर कुछ है तो, risk mitigation analysis, then collateral support, अगर आप कोई collateral land या फिर asset तो anyway रहता ही है, land है, apart from land if someone asks you what will be the collateral, generally FD या फिर the people basically again give the other properties although as a collateral. And then the project component value support, आपके सारे के सारे मतलब asset रहता है, that's what I have told you. And then transferring of the ownership, that is again the one of the risk mitigation analysis कि you can give some idea about the companies, let's say जो आजकल take over कर लेती हैं asset management companies mainly. So it basically the transfer of the ownership that can be possible. So these are the factors which has to be covered in the DPR. So these are my 2 slides which basically cover on the DPR. अगर आप ये सारे के सारे points आपके DPR में हैं, this is the very good chances for you to get your financing done with the best and competitive interest rate. So any question on the DPR side? I think I can't hear. So any question? Okay, Harish ji, no. अब आते हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन रेस्को कंपनीज आपको मतलब है ना फाइनेंसिंग जो है वो आपको कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले तो बैंक है हमारे, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब जगह से मतलब दीज बैंक्स आर वेरी मच ओपन। आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा भी रेडीमेड फाइनेंसिंग पर आ गए हैं, जो कि मतलब ना काफ़ी मेरे लिए सरप्राइज की बात थी। एंड बाकी के जो पहले एसबीआई एंड पीएनबी, दीज आर हैविंग द वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग सपोर्ट, ये तो थे ही। बाकी के आजकल मतलब बीओबी जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। सो द बेनिफिट विद द बैंक्स इज बेसिकली आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो एक लेवरेज आप कर सकते हैं। आपका अकाउंट वहीं पर है, आपका करंट अकाउंट वहीं पर है, आपका कैश फ्लो अच्छा हो रहा है। it is good and ideal to have basically ask further your bank to leverage that kind of relationship. बैंक आपका कोलेट्रल भी मांगते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस बैंक आपकी कोलेट्रल मांगते हैं। तो रिसेंटली जो अभी मैं देख रहा हूँ तो लोन वैल्यू का 50% अपार्ट फ्रॉम लैंड जनरली ये बैंक ना आजकल आस्क कर रहे हैं। एंड बैंक विल गिव यू द ओनली फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल पैसा मिलेगा, नथिंग एल्स। टाइम टेकिंग अप्रोच है बैंक्स में, आप यू कैन अंडरस्टैंड कंसीडरिंग द बर्डन ऑन द बैंक्स, दे माइट टेक अ टाइम टू अप्रूव योर फाइल। एंड इसमें क्या होता है कि आपकी फाइल आज गई और 1 महीने बाद प्रोजेक्ट आपकी फाइल अगर खुलती है उसके बाद 1 महीना लग जाता है, तो मतलब उस टाइम पे प्रोजेक्ट ही लेट हो जाएगा और आज की डेट में फिर प्राइस जो है वो मिलेंगे नहीं। मॉड्यूल के प्राइस इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, तो वो मतलब एक रिस्क है काफ़ी बैंक के साथ जाने में। मतलब केवल यही रिस्क है और कोई रिस्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो अदरवाइज इंटरेस्ट जो है वो रिलेटिवली कम रहती है बैंक्स में। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपका सिडबी हुए, टाटा कैपिटल हुए, और और भी कुछ छोटे छोटे फाइनेंशियल, एल&टी फाइनेंस हुआ। तो दीज आर ऑल स्टार्टेड गिविंग द लोन ऑन द सोलर। अगेन अगर आपने पहला आपका कहीं से कोई होम लोन चल रहा है किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बेसिकली लेवरेज दैट रिलेशनशिप। अगेन यहाँ पे भी आपको कोलेटरल सपोर्ट रहेगा। हाँ, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रीफर्ड ईपीसी वेंडर होते हैं, तो हो सकता है वो आपको लोन तभी दें जब आप उनके प्रीफर्ड ईपीसी वेंडर के साथ काम करें।
कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, सब में नहीं है। एक EFL करके है, मैंने उसके बारे में सुना था। तो मतलब इट अगेन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी के प्रीफर्ड EPC वेंडर होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो अगेन इट विल हैज टू बी इवैल्यूएटेड। टाइम टेकिंग अप्रोच, हाँ थोड़ा सा इसमें भी ज़्यादा है, बट हाँ बैंक से मेरे को नहीं लगता बैंक जितना ज़्यादा है इसमें। I have experienced with Tata Capital, I have experienced with L&T Finance, so it was the good side of working. And अगर टाइम लगता है, फिर भी अगर जैसे टाइम लग गया तो प्रोजेक्ट आपका रिस्क है, फिर डिले रिस्क है। इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब मैं जितनी भी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब आई वुड नॉट से कि इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी डिफरेंशिएटिव। इट विल बी जस्ट लाइक 8 to 12% इन बिटवीन। कोई बैंक आपको 8% या 10% पे दे रहा है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10.5 का मतलब 10.5-11 पे देगा। The difference is not much. Difference is not much more than a 1% in either of the three cases you go. तो 1% का डिफरेंस, वैसे हम तो सोलर में इफिशियंसी 1% की बहुत ज़्यादा होती है, तो सेम इंटरेस्ट रेट भी 1% बहुत ज़्यादा होती है 25 साल के लिए। सो द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वेरी वेरी केयरफुली कि हम लोग कहाँ से लोन ले रहे हैं, एंड व्हाट विल बी द इजीएस्ट वे टू गेट इट अहेड। मतलब बाद में लोन हमारे को पेड बैक करने में भी आसानी रहे। देन देयर इज द रेस्को कंपनीज, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। इवन आई एम प्रेजेंटिंग द रेस्को कंपनी ऑल्सो। तो वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद EPC एंड O&M सर्विस। तो आप अगर किसी कंपनी से करते हैं, बात करते हैं, लेट्स से, देन दे विल हैव देयर EPC, क्योंकि प्रोजेक्ट उनके बुक्स में रहेगा। प्रोजेक्ट उन्हें चलाना है 8 साल 10 साल, जैसे भी जितने भी साल। तो प्रिफर्ड उनका यही रहेगा कि मैं अगर प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या हिस्ट्री है, वो मेरे को पता होना चाहिए अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ। सो दैट इज द वेरी क्लियर कट फंडा फ्रॉम द रेस्को कंपनीज, एंड दे विल डू द O&M ऑल्सो। कि वो कहेंगे कि यार मेरे को खुद ही O&M करना है, बिकॉज ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ना जनरेशन। और यहाँ पर आपका कोई मेजर कोलेटरल सपोर्ट नहीं होता है। इवन इफ यू पे लाइक ना, अगर आप बैंक की तरह ही, अगर आप रेस्को कंपनीज में बात करते हैं 30% का मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं और 70% और, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है आई वुड से, रादर देन अगर आपको बैंक में दिक्कत आ रही है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, या फिर फाइनेंशियल्स आर नॉट गुड सपोर्टिव, तो फिर रेस्को कंपनीज इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पर बहुत आसानी से काम हो जाता है एंड वेरी प्रोफेशनल अप्रोच रहती है। ऑल द थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर, बोथ द साइड लीगल पार्टीज, ऑल दोस थिंग्स विल ड्राफ्ट द एग्रीमेंट। तो एक इजी अप्रोच है। द ओनली थिंग इज कि रिटर्न उसमें थोड़े से कम होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली हाई लगती है। अगर आप पूरा ओवरऑल चीज़ें देखेंगे, तो हो सकता है आपको 10 से 12% की इंटरेस्ट रेट आपको लगेगी, मतलब बिकॉज यू नो द प्राइस द प्रोजेक्ट, यू नो द जनरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स, देन यू कैन सी दैट द इंटरेस्ट रेट इज रिलेटिवली हायर ऑन द रेस्को साइड। But You mean the RESCO, you mean the CAPEX EMI model? CAPEX EMI or OPEX model, any CAPEX EMI or OPEX, both. So CAPEX EMI will have a margin of what, 25-30%? CAPEX EMI will not have such much of margin. Even we are doing it, मतलब इतने margin तो 25-30% तो है ही नहीं सोलर प्रोजेक्ट में। नहीं, 30% contribution from the client's end. Is हाँ that what you mean? हाँ, yeah, 30%. अच्छा, So it 30%. will be it will be again the maximum. ये मैक्सिमम अच्छा 30% है, मतलब अच्छा मिनिमम तो वही है कि डिपेंड करता है कि कितना क्या बाकी की टर्म्स है। ओके हाँ, तो ये मैक्सिमम मैं कहूँगा कि अगर आप कैपेक्स EMI मॉडल में जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 30% रहेगा आपकी तरफ से, एंड अगेन वो 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स। अच्छा okay, because coincidentally I had a case from Nagpur in fact, wherein the client was an industrial client, steel industry थी उनकी, and they were looking for a RESCO model. तो मैंने उन्हें हालांकि अप्रोच किया है CAPEX EMI के लिए। ओके ओके Not very comfortable, क्योंकि CAPEX EMI अगर वो लेते हैं तो they have a lot of benefits, you know, in terms of the राइट ownership pattern, in terms of the depreciation benefits, in terms of, you know, राइट because उनका rooftop है in fact, but then
preferred a complete RESCO model. Okay, So okay. that's where I'm still matlab exploring a bit. Like that's it. राइट राइट तो Yeah. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो आपने कैपेक्स सीएमआई का बोला है दैट इज द गुड, इवन वी आर डूइंग इट। तो उसमें क्या रहता है कि मेनली कस्टमर का इंटेंशन जानना होता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है ये कैपेक्स सीएमआई में जाने का। अब जैसे आपने केस बताया मेरे को नागपुर का, महाराष्ट्र में, तो वहाँ हाँ पर जी। एक तो वहाँ पर मतलब ओपेक्स मॉडल अलाउड है। बहुत सारे हाँ। स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपेक्स मॉडल अलाउड नहीं है। सही तो बात है। तो वो या तो वो है कि ओपेक्स मॉडल अलाउड होने के बावजूद भी वो है ना कैपेक्स सीएमआई में जाना चाह रहे हैं। देन नहीं सेकंड जाना चाह रहे हैं। ओके ओके We are going for RESCO model completely. मतलब ओके OPEX model जाते हैं पूरी तरह. So that's where I'm still exploring. Like let's see. Anyway. The other factor in capex CMI is basically he can save the AD benefit. He can basically That's earn right. the AD benefit. तो वो Right. वो एक अच्छा सिस्टम है अगर उन्हें टैक्स ज्यादा दे रहे हैं तो। I think it's 40% plus 60%, ना? Yeah, 40% plus 60%. 40% first year, 60% second year, right? AD में. So it's basically 40 plus 60. That's right. But what? Yeah, right. But what will happen? The balance का 60 होता है actually. अच्छा 40 plus 20 या 40 plus 60? वो सर 40 plus 20 का ही है। मैंने ना ये रूल्स भी चेक किए थे, सेक्शन 32 में हाँ आता है आई थिंक। बिल्कुल सही बात है. हाँ तो ये 40 ही है, 40 एंड देन बैलेंस जो रह जाता है उसका 40। तो लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, वो भाई या तो टोटल का आप 60 लोगे, बैलेंस का 40 लोगे तो बात बराबर ही पड़ेगी। बात की है, सही बात है. तो दैट इज Right. द केस। तो 40 बैलेंस का फिर 40 और कोई बच जाता है तो उसका फिर 20। अच्छी बात है. अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, ये फंडिंग जो है इन्हें कोलेटरल लगता है या वी कैन पुश आवर फाइल थ्रू अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मोड? मतलब इट विल अगेन डिपेंड्स। अगर आप जैसे इंडिविजुअली अगर कोई जा रहे हैं, आपका अगर इंडिविजुअली है और आई मीन टू से दैट छोटा प्रोजेक्ट है, तो फिर हो सकता है वो कोलेटरल ना भी लगे अगर हिस्ट्री अच्छी है आपका उसी में ही है तो। बट अच्छा. बट फिर भी वो है ना आपकी पर्सनल गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे सही बात है. Okay, अगर वो fine. कोलेटरल नहीं ले रहे हैं तो ये चीज तो रहेगी रहेगी। अच्छी बात. फाइन, लेट्स गो अहेड. हम्म। हाँ तो अब उसके बाद ये जो आपका फाइनेंसिंग लेट से आपकी मिल जाती है, उसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं दैट आर द इक्वल वेटेज। उन पर आपका ना इक्वल वेटेज है, उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए आई वुड से। बहुत सारे लोग एक बार फाइनेंसिंग मिलने के बाद, प्रोजेक्ट लगने के बाद वो एनपीए बनते हुए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। बट वही केस होता है कि है ना प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज नहीं हुआ और प्रॉपर्ली काम हुआ नहीं। तो हमारी जो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज हैं दैट शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एक्टिविटीज। आपके प्रॉपर अप्रूवल और एनओसी होने चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, देयर वाज सम न्यू प्लेयर, ही केम इन स्टार्टिंग एंड कुछ एनओसी वगैरह कुछ भी नहीं लिया और काम स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ पर भी उसको अप्रूवल्स के जहाँ पर ₹1 देना था वहाँ पर उसको ₹1.5 ₹2 दे रहा है। तो प्रॉपर्ली जहाँ पर आप प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट की रेगुलेशंस हैं उसे प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। प्री दो अप्रूवल्स होते हैं हर जगह, प्री कमिश्निंग, पोस्ट कमिश्निंग। तो आपको प्री कमिश्निंग अप्रूवल्स क्या-क्या होने चाहिए और कमीशन होने के बाद क्या-क्या अप्रूवल होने चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर, तभी आप आगे है ना प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट कीजिए। कोई भी कंपोनेंट्स का ऑर्डर दीजिए। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है अप्रूवल्स की, हालाँकि फॉर्म केवल ₹100 का ही आता है, किसी भी का अगर आप देखें तो फॉर्म कॉस्ट इज़ नॉट अ मैच कॉस्ट, बट दैट हैज़ द वैल्यू। एंड डबल चेक ऑन द डिजाइन एंड कॉस्ट रिड्यूसिंग पैरामीटर्स। आपको आपको अपनी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, आपको वहाँ का कंटूर सर्वे सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है कि डिजाइन फेलियर की वजह से आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लास्ट में हैम्पर होती है। आपने जो भी कंटेंजेंसी ले रखी होती है उसका डबल ट्रिपल निकालना पड़ता है। तो दोज ऑल थिंग्स शुड बी डबली एश्योर। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, तो आई वुड सजेस्ट आप एक टेक्निकल प्रॉपर कंसल्टेंट से ही ये चीज़ें रिवाइज करवाइए, री-वेरीफाई करवाइए, तभी कीजिए, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स और दीज स्मॉल थिंग्स क्रिएट द बिग इम्पैक्ट। कहीं पर अगर स्ट्रिंगिंग सही नहीं हुई है
तो आपका इन्वर्टर खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, आपकी बहुत जल्दी इन्वर्टर खराब हो जाएगा। सो ऑल दोज़ थिंग्स एंड प्लानिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे ही आपका प्लांट फाइनल हुआ, आपको मॉड्यूल का ऑर्डर दे देना है मैं तो यही कहता हूँ, ताकि आपको बेस्ट रेट मिल सके। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद 1 मेगावाट का प्लांट है, तो आप जे गारंटेड 2 महीने बाद ही आप मॉड्यूल लगाओगे। तो जितना जितना अच्छा मॉड्यूल का रेट आपको उस टाइम पे मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू पर, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव सीन इट। देन एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन में सारा का सारा इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए। पैसे ज़्यादा लगते हैं, लगे, बट यस, इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी सेफगार्ड थिंग। Then deployment of proper manpower, use of safe and proven practice, double assurance during MMS and cable placement, and verify from the customer, because most of the cases आपने केबल वेरीफाई कराया कि मैं लैब का लगाऊंगा या फिर RR काबिल का लगाऊंगा, बट कस्टमर को नहीं पता है RR केबल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर वो दोबारा निकलवाएगा, जाएंगी चीज़ें। तो बेटर टू वेरीफाई फ्रॉम द कस्टमर ये सब चीज़ें हैं, बिकॉज इट विल हर्ट योर मैन पावर ऑल्सो, कि आप मैन पावर को बोलोगे कि भाई दोबारा हटा के दिखा। ये सब चीजें क्या एक बार अंदर लग जाती हैं, और कस्टमर एंड पर कस्टमर कैन से एनीथिंग, एंड जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके बिल पास नहीं होंगे। तो बेटर टू हैव, वेदर ये कैपेक्स प्रोजेक्ट है या ओपेक्स प्रोजेक्ट है, मैं तो कहता हूँ दोनों में ही करवाना चाहिए, बिकॉज कस्टमर इज किंग ऑलवेज। सही बात है। Then safety of the component, warranty, guarantee cards, ये सब चीजें आपको कस्टमर को हैंड ओवर करनी है। So this is the post commissioning work which I am coming on, then the approval from the local SMA, जो आपका local state nodal agency है, DISCOM है, any other relevant authorities. Then final commissioning certificate from the DISCOM, handover certificate to the customer, O&M work allocation, and the asset management work. So these all things should be done very very properly for your project management activities. Then this is the asset management of the solar portfolio. जब आपका plant लग जाता है, now there are the professional company, those who are doing the asset management. But if you are yourself good into that, you can also do that. You can have a small team, and mainly automation का काम है। आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी चीजें आ गई हैं, आप सबको मॉनिटर कर सकते हैं। So these are the few points which I have basically mentioned and that you have to do. But here two important factors हैं, that is basically repowering of the solar assets. आपने प्लांट लगाया, बट 10 साल बाद, 12 साल बाद वो आपका लगभग 8% डिग्रेड हो गया होगा, 8 से 10% डिग्रेड हो गया होगा। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 10 से 12 साल के टाइम पे कि आप उसको रिपावर कर सकें। 8 से 10% का जो डीसी है, उसको आप दोबारा सिस्टम में डाल सके। तो वो सब चीजें आपके कैश फ्लो को बढ़ाएंगी, फ्यूचर कैश फ्लो को। तो इन चीजों को ना आपके एसेट मैनेजमेंट को जरूर देखना चाहिए। एंड देन रीफाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट लगने के 12 महीने तक फॉर 1 ईयर यू कैन डू द रीफाइनेंसिंग बेसिकली। तो अगर आपका, जैसे आपको स्टार्टिंग में लोन नहीं मिला है, बैंक कभी कभी बोल देते हैं कि आप अपने इक्विटी पे लगाओ, हम आपको बाद में फाइनेंस कर देंगे देख के। हालांकि और कंट्रीज में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, वहाँ पे तो आपको मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स में 10 साल तक है, आप 10 साल तक रिफाइनेंस करा सकते हो, बिकॉज इट विल गिव देम द कॉन्फिडेंस ना। 5 साल तक प्लांट चल गया तो ठीक है, बाकी के 20 साल भी चलेगा। पहले 5 साल ही काफी क्रूशियल होते हैं हर किसी टेक्नोलॉजी के लिए, प्रूव करने के लिए। सही बात। बट कॉन्ट्रेरियली इंडिया में केवल 12 महीने का ही है। तो जब तक वो विंडो है, दैट इज ऑल्सो द गुड विंडो, द पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज ऑल्सो। इसके एडवांटेज भी लोग लेते हैं, रिफाइनेंसिंग वगैरह करा सकते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। सो फॉर अ 1 ईयर देयर इज नो इश्यूज। आफ्टर 1 ईयर इंडिया में रिफाइनेंसिंग नहीं होती है। आफ्टर 1 ईयर, यस, आफ्टर 1 ईयर मतलब वो फिर किसी और डोर से होती है तो हो जाए, बट मैंने नहीं देखी अभी तक 1 साल के बाद रिफाइनेंसिंग होते हुए। फिर वही है, फिर एसेट सोल्ड होते हैं, मतलब आपने एसेट ही किसी को ट्रांसफर कर दिए, आपने उसका अगर एसपीवी बनाई है तो आपने उसके कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो वो कुछ हो गया तो हो गया, बट प्रॉपर्ली बैंकिंग रिफाइनेंसिंग नहीं है। Yes. Now I am coming to the very important and the last slide, my last slide, futuristic business model. तो एक हायर परचेज मॉडल है, तो अभी आपने
कहा था वही कैपेक्स EMI, so that is basically the hire purchase only, जहाँ पर तो ये वाला प्रोजेक्ट मॉडल अभी है ना, मतलब गुजरात में पहले काफी चल रहा था बट पॉपुलर नहीं था, बट नाउ इट इज कमिंग ऑन पॉपुलर ऑल्सो. But apart from that model, which is the buyback model, so we as a Ravindra Energy, we are also basically coming up of this model, buyback model. So it is very lesser risky model and much value prospective. तो ये मॉडल क्या है? बाईबैक मॉडल में क्या होगा, अब जैसे अगर आप को सोलर प्लांट लगाना है and your objective is basically not to take the much risk, or so you can come up with us, we jointly can build up the project. तो हम जब jointly build up करेंगे तो what we can do, we can create one separate SPV. तो उस सेपरेट एसपीवी पर बेसिकली द शेयर्स विल बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट. अगर आपने 30% इन्वेस्टमेंट किया है, 20% इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका 20% उसमें शेयर्स है उस एसपीवी में, बैलेंस 80% विल बी द इन्वेस्टर्स. एंड लेटर ऑन आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, 5 इयर्स, अगर आपको लगता है कि 5 साल के बाद आपका आपको फुल ओनरशिप लेनी है, यू कैन हैव इट दैट काइंड ऑफ लेवरेज कि आप फिर शेयर्स को है ना, हमारे शेयर्स को परचेज कर लीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू, क्योंकि दैट इज ऑल आर द डेप्रिशिएटिंग एसेट्स. तो जो भी उनकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी क्वाइट अ गुड मॉडल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट विद द फ्यू पीपल. So the case here is because what will happen, most of the people are not able to take the risk कि कॉर्पोरेट गारंटी नहीं दे सकते हैं, अपनी पर्सनल गारंटी नहीं दे सकते हैं, और कोलेटरल नहीं दे सकते हैं, तो वो सब चीजें हैं. तो उसमें फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, यू विल कम अप विद अस, मतलब ये सब चीजें आ रही हैं तो वी विल हैव ऑल द रिस्क. हम फाइनेंसिंग लाएंगे, हम अपनी कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं, हमने इतने सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, सो वी विल डू ऑल दैट थिंग्स. एंड मे बी आफ्टर अ ईयर, मतलब आफ्टर कपल ऑफ इयर्स और 5 इयर्स, यू कैन टेक दैट ओनरशिप. आप खुद से ना काम कर सकते हैं. दैट इज द वे विच वी आर कमिंग अप. तो अभी जितने मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राउंड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं, वेयर द क्लाइंट आर नॉट एबल टू टेकिंग द रिस्क. So we are basically coming up with the joint SPV and do the under the single SPV we are doing that projects. So that's the way we are again working on. So this is all from my side. And if any query, I am free to answer. Okay, I'll enable mic to other people, other participants. Yeah. That is Mr. Saurabh and Mr. Swapnil Patil. You are listening to all the talks by Mr. Ash. Any questions, like you can directly pose here. You can use the chat also. Yeah. Of course, I'll share this PPT and also contact details of Mr. Ash to you guys. Okay. You can come out with your questions. Okay, Mr. Swapnil Patil. Yes, sir. I'm Swapnil. Yes, sir. Actually, I'm a small solar installer based in Pune. Okay. Installing the small rooftop projects here. Okay. But actually, one of my client or my relative is having 110 acres land in Amravati district. And we are interested to install around 25 megawatt plant there. And also having a PPA agency so that we can sell our power to them. And in search of a RESCO company model who can help in installing the project and financing the project. तो मैंने वही बताया. तो स्वप्निल जी, मैंने वही बताया, मतलब इसमें क्या है कि ऑफ टेकर कौन सा है, मतलब दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आपसे हर कोई यही पूछेगा कि ऑफ टेकर कौन सा है और कौन है. अच्छा, ऑफ टेकर इज स्टील इंडस्ट्री सर. अच्छा, ऑफ टेकर स्टील इंडस्ट्री है. ओके.
then it is ऑफ टेकर। अगर आपका स्टील इंडस्ट्री मतलब आपको पता है कि ऑफ टेकर कौन है और आपको पता है कि कितने कितने रेट पे वो परचेज करेंगे, आपको अगर ये दो चीजें पता है, then it is easy, means then you can basically have that I would say आप एक ना DPR नहीं तो एक स्मॉल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट टीजर बना सकते हैं जिससे आप सर्कुलेट कर सकते हैं। सो that will be basically मतलब you can have the Resco companies very easily। आपको बस थोड़ा सा एक उसमें ना जो मैंने आपको बताया, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू मॉडल जो मैंने आपको बताया है उस पर आप एक अपना 1 पेज या 2 पेज नोट बना सकते हैं और you can share it and then there are a lot of Resco companies can come up. So can I get some help in finding the Resco company from you? Yeah, of course. Yes. So Yes. yeah, so I will share that 2-page note or project proposal to you. Yeah. Let us see how it works. Yeah. Okay, Okay, sir. thank you. Thank you. I will connect you. I mean, give the address, email ID, and phone number, Mr. Ash. Okay. Yeah. What about Mr. Saurabh? Any questions from your side? We got, brief introduction of Mr. Swapnil Patil. He's from Pune. Mr. Adir, what about you? Where are you from? Basically, I think you're also from Maharashtra. Yes, I am also from Pune. Ah. I'm running a company, a small company called Shisha Energy Solutions. We are more of an EPC contractors. Okay. So we are more into EPC and we are also into consultancy. Okay. Solar or all other renewables? No, across the spectrum, all the products. Okay. Anyway, so how we are mutually beneficial, you can decide. We can talk Certainly. to Mr. Ash also. Okay. Certainly. Thank you, sir. Thank you for participation. And I will share all these details. Okay, not a problem. And right. Mr. Saurabh Koroni, I think he's from Gujarat. Sir, you are there? If you are there, I will. You can talk. Otherwise, any more questions from your side, sir? Mr. Govardhan, just one small query. In fact, I don't know if it's really relevant or not. Okay. There is a client of mine who is based out of Andhra Pradesh. Okay. He has a running power plant. Now, this running power plant is basically working on a leased land. Okay. Off-taker is the DISCOM, AP DISCOM. Okay. Now, the earlier, as Mr. Yash pointed out, the rate was 8.5 rupee, the PPA rate. Okay. After the turmoil, which all the confusion which took place, the rate has been revised by the AP government. Okay. Right. Now, the gentleman wants to buy this land. It's already on. Okay. The current rate of PPA is 4.5 rupees, which the billing is anyway going on with. The regular billing is already on. Okay. Is there a way he can possibly, get some finance for the buying of land as such? Is it possible? So that's possible. So buying of the land is anyway, that is possible. That will not come with the solar actually. Yep. So how do you do it like? So how it will happen? It will be pure play. How the people basically purchase the land, it will be pure and play that game only. It is just like there is a building on the land, and you are purchasing the building along with the building. Basically, you are purchasing the land along with the building. तो उसमें सोलर का तो रोल बहुत ही कम आएगा, मैं तो ये कहता हूँ। और उसके लिए आपको वही है कि कोलेट्रल क्या लगेगा लैंड को परचेज करने के लिए, तो आप अपनी बिलिंग्स दिखा सकते हो। सही बात तो आजकल जो जैसे इनवॉइसिंग पे भी फाइनेंसिंग हो रही है, तो अगर आपके इनवॉइसिंग आप अपने इनवॉइसिंग पे भी फाइनेंसिंग कर सकते हो, आई मीन टू से। तो आपको कोलेट्रल की जगह आप अपने इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग वाला एक ऑप्शन है दैट यू कैन डू, जिसमें आपको to talk to the banks. Only hitch is that this concerned developer has already filed a case against the AP government. मतलब court ने already filed किया हुआ. So that is already going on. So will that be any hampering factor as such for the developer or this loan proposal as such? I didn't get you. Can you please repeat it?
he's filed a case against the government because Oh. 8.5 rupees की जगह 4.5. They renegotiated. That is, okay. new minister, chief minister. He thought that earlier ministry there, they made a lot of money and all this thing, so they renegotiated. Right. And So it is not only that many people have filed case. Okay. Right. Will that affect the overall loan proposal? Right, it will affect, but the loan will be happen on the 4 rupees only. वो 8 rupees पे तो नहीं होगा. नहीं वो तो obvious बात, वो तो नहीं होगा, पर 4.5 रुपए हो जाएगा. हाँ, 4.5 रुपए पे रहेगा. तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, इनवॉइसिंग फाइनेंस में आपकी जितनी इनवॉइसिंग जा रही है, तो उसके बेसिस पर आपके है ना, मतलब आपने जैसे आज के देखा जाए तो आपने 3 महीने की इनवॉइस दिखाई कि मेरे इतने 3 महीने के इनवॉइस से मेरा इतना पेमेंट आ रहा है और ये पेमेंट मेरे आने वाले 20 साल तक आएगा. सही बात है. तो right, it's coming from Discom anyway. True. हाँ, it will coming and through Discom anyway. So that's the invoicing financing. आपको उसके बेसिस पर लोन मिल जाएगा. आपको हो सकता है कोलेटरल भी ना देना पड़े इस केस में. अच्छी बात. I think that's sorted. Right. Done. Thank you so very much. Yeah. Thank you very much, sir. Okay, I think we can sign off. Okay, I think there are no much questions from the participants. Okay. Anyway, thank you very much for all the participants. And also Mr. Ash giving all the insight into this financing methods. Okay, now I will connect to you later on, and I'll pass on the information about your contact details. Thank you very much, and thank you for listening patiently. And of course, we had little technical problem initially. I think we sorted out. Right. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thanks, have a good evening and good night. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.